Assalamu alaikum. I'm Faryal Khan, and I'm writer and researcher and have been journalist too. As my viewers know that I'm doing podcast on national level as well as international level on different themes, and I'm working on the global evolving consciousness, of course, to bring inclusiveness and to celebrate diversity. So today our theme is a journey from conventional agriculture to organic farming in this digital arena. So this is a highly concerned topic, and it is very hot topic of the whole globe, especially during this pandemic. And um, पूरा focus जो है वो हमारा lifestyle पे है, हमारी food पे है, हमारी health पे है. तो as being an agriculture country, what is our contribution regarding to organic food, regarding to organic lifestyle, and as well as regarding to our organic contribution in the whole agriculture arena, or especially in this digital arena. So we will discuss two today. We will discuss all this in conventionally as well as unconventionally. We have wonderful speakers with us regarding to this field. So let's have a brief introduction of everyone. Yeah, sure. I think let me introduce myself. This is Awais Ali Khan. I'm an agricultural graduate. I'm with a specialization in agriculture extension, but however, my research focus was focused on water scarcity impact assessment. So, my PhD recently I have completed my PhD, and my topic was vulnerabilities to water scarcity. As well as I worked at Cranfield University as a research fellow, and then I started a project with my British supervisor in Pakistan, and the project is just recently completed. और प्रोजेक्ट का टॉपिक जो हमने अभी काम किया है उस पे था सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम की सोशल इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट. तो या नाइस टू मीट यू. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अहमद रज़ा खान किरमानी है और मैं एम्प्लॉय कर रहा हूँ कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट में. और मेरा तारुफ ये है कि मैं नेशनल एग्रीकल्चर यूथ कमीशन में पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे सीनियर्स बैठे हैं, अवैस भाई हैं, फ़खर इमाम भाई हैं. और तो मैं आज मुझे अच्छा लग रहा है कि चले मैं इनके साथ आज बैठ के बात करूँगा और इंशाल्लाह अभी स्टार्ट होता है तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखेंगे. Of course. ये मेरा छोटा सा तारुफ है. Wonderful. Okay, next one we have Fakhar. My name is Mohammad Fakhar Imam, and I've done my graduation in agriculture extension and communication. My areas of research are climate change and its impact on agriculture and ICTs, basically information communication technologies in agriculture. Wonderful. Next we have Noor Ahmed Khan. Sorry, Mohsen Malik. Mohsen Malik. सॉरी गाइस, मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ फ्रॉम कराची टुवर्ड्स हैदराबाद. तो मोहसिन फ्रॉम स्पर्ट इंटरनेशनल. आई एम CEO ऑफ स्पर्ट सीड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड. एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ एंड वी आर डीलिंग विद ग्रीन हाउस फार्मिंग, टनल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, NFT and modern agriculture. Wonderful. And next we have Noor Ahmed Khan. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम नूर अहमद खान और सोशल मीडिया पे मुझे लोग नूर महसूर के नाम से जानते हैं. Okay. मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, काफ़ी अरसे से बिजनेस कर रहा हूँ पिछले 20-22 साल से. और बिजनेस में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मार्केटिंग है, उसमें कंस्ट्रक्शन है, उसमें रिटेल है और उसमें ट्रेनिंग्स भी हैं. ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है मेरा 20 से 25 साल के दरमियान. बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक ट्राइबल एरिया से है, वज़ीरिस्तान इसका नाम है. तो मैं पिछले 20-22 साल से लाहौर में रिहाइश पजीर हूँ. पूरे पाकिस्तान में मुझे जाने का मौका मिला, घूमने का मौका मिला, रहने का मौका. तो बेसिक एजुकेशन मेरी जो है उसमें फाइनेंस में, मैं कैफ क्वालिफाइड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान. और उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें जो है ना मेरी एक्सपीरियंस में, तो मैं ऐसा आपको बताऊँगा नेक्स्ट सेशन.
ये मेरा तारुफ। Yes, wonderful. So we all have wonderful speakers regarding to their field, regarding to their work craft. So first of all, what is organic culture? We will start from Awais के ऑर्गेनिक फूड जो है वो एक बहुत ही डीपली कंसर्न है फॉर द होल ग्लोब. तो पहले तो हम लोग अपनी ऑडियंस को ये अवेयरनेस देंगे कि ऑर्गेनिक है क्या असल में, जो कि हम लोग फर्टिलाइजर्स की फूड खा खा के और अब ये जो है वो हम लोग जो सीडलेस जो हाइब्रिड जो सीड है वो प्रोड्यूस करके हम लोग फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इसका क्या इम्पैक्ट है, व्हाट इज पहले, क्योंकि इससे पहले जो है हमें ऑर्गेनिक का पता होना बहुत जरूरी है, हमें बेसिक्स का पता होना बहुत जरूरी है. So we will start from Awais Khan. What is organic and how much organic culture is prevailing in Pakistan? Thank you so much, Faryal. So, organic food or organic farming. Organic is something which is natural, without human manipulations, और जिसके अंदर आपको जो एक कुदरती सिस्टम और कुदरती प्रोडक्शन के थ्रू जो आपको कुदरत एक फूड प्रोड्यूस करके देती है, दैट इज ऑर्गेनिक विदाउट ह्यूमन मैनिपुलेशन. सो मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनिक फूड का और ये जो हमारा आज थीम है इसके ऊपर थोड़ा सा मैं एक थोड़ा सा और क्लियर कर दूं इसकी पिक्चर. Yes. देखें, ह्यूमन हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें तो हमें ये पता है कि इंसान अपनी ज़रूरियात के तहत चीज़ों के अंदर मैनिपुलेशंस करता है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स करता है. और जब हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से राइज हुई है पूरी दुनिया की. जी. अगर हम पाकिस्तान को ही देख लें तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो 47 में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग वी वर जस्ट 4 और 5 आई थिंक 40 और 50 मिलियन. सो अब हम लोग 200 मिलियन से ऊपर पहुंचे हुए हैं. सो जैसे पॉपुलेशन राइज हुआ, फूड डिमांड ऊपर चली गई. अब फूड डिमांड को पूरा करने के लिए उसके बाद फूड डिमांड को पूरा करने के लिए तो GMO क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुई, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स थी. अब उसके अंदर जब ह्यूमन मैनिपुलेशन हुई, ह्यूमन जब उसके अंदर इंटरफेरेंस हुई तो एक सिलेक्टिव जो एलिमेंट था उसको उठाया गया, उसको प्रमोट किया गया और इवेंचुअली एक बैलेंस्ड डाइट से निकल के हम लोग एक कमर्शियलाइजेशन की तरफ चले गए. तो जब कमर्शियलाइजेशन की तरफ चले गए तो वो सूरत तो खूबसूरत होगी लेकिन सीरत पे हम कंप्रोमाइज कर बैठे. Yes. तो अब वो जब GMO क्रॉप्स की तरफ हम नजर डालते हैं तो अब उसके अंदर जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन आती है तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन अपना जो इम्पैक्ट है वो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग छोड़ती है और बहुत स्लोली छोड़ती है, स्लो एंड ग्रेजुअली. सो अब इंसान को रियलाइज हो रहा है कि उसने एक ब्लंडर कर दिया है और वो ब्लंडर के नतीजे के अंदर अब वी आर ट्राइंग टू गेट बैक टू और नेचर और जैसे हम पहले थे. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ वेस्ट को ज़्यादातर इसकी तरफ रुझान है और वेस्ट में इसकी डिमांड और रुझान बढ़ता जा रहा है क्योंकि अवेयरनेस लेवल ज़्यादा है. तो जब अवेयरनेस ज़्यादा आती है तो आप ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं, लेकिन हमें ये भी इसको देखना पड़ेगा कि अभी आपने बात की कि फर्टिलाइजर. सो आई थिंक फर्टिलाइजर का काम तो एक बैलेंस्ड और एक प्रोडक्टिव लैंड को इंश्योर करना होता है. लेकिन ये जो हम कन्वेंशनल फार्मिंग का जिक्र करते हैं तो कन्वेंशनल फार्मिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. इस पे फखर साहब आपको डिटेल्स बताएंगे. ही इज इनटू प्रैक्टिकल फार्मिंग नाउअडेज. तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये हमें कुदरत से तोहफा मिला था जिसको हमने बिगाड़ा और बिगाड़ने के बाद हमें दोबारा उसकी अहमियत का अंदाजा हो रहा है. आई थिंक अच्छा सा ब्रीफ करने में मैंने कोशिश की है ऑर्गेनिक फार्मिंग. Yes. Okay. अभी जैसे ऑर्गेनिक जैसे कि पेंडेमिक ये जो होल सिनेरियो जो हमारे सामने है पेंडेमिक इस टाइम, इससे पहले भी जो एपिडेमिक्स पूरी सेंचुरी में आते रह गए हैं लाइक इन्फ्लुएंजा और भी बहुत सारे which were the version of these, like corona is the version of like previous all epidemics. तो उसमें भी तो पूरा सदी आई थिंक सेंचुरी ये पूरी बात होती रह गई है फूड पर, नॉट जस्ट अभी.
मतलब हम लोग पीछे भी हम लोग बात करते रह गए हैं फूड की क्वालिटी पे, अपने लाइफस्टाइल पे। इवन कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे, हमारी जो जनरेशन है, जब हम लोग बड़े हो रहे थे, तो हमारे बड़े हम वी हैव आई हैव सीन माय पेरेंट्स या हमारे घर के बड़े या हमारे टीचर्स जो है कहते रह गए थे कि लाइक यू आर नाउ बर्गर जनरेशन, यू नो, लाइक आप लोग बर्गर जनरेशन हैं और आप लोग जो है वो तो उस पर बात करते हैं कि ये सिनेरियो कब क्रिएट हुआ, स्पेशली इनऑर्गेनिक की तरफ, और लोगों ने इसको मेंटली कब एक्सेप्ट किया कि हम लोगों ने बस यही फूड खानी है। और सिर्फ इस पेंडेमिक वाज नॉट, आई विल नॉट बिलीव कि सिर्फ पेंडेमिक ही ये रीजन है ऑर्गेनिक फूड पे बात करने की। तो इस बात से जो है जी it has nothing to do with the pandemic, you are right. असल में इसका सिर्फ अवेयरनेस से ताल्लुक है। तो जैसी अवेयरनेस आई और अवेयरनेस आने के नतीजे में इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती चली गई, और पेंडेमिक के साथ हम इसको को रिलेट कर नहीं सकते, इनडायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक फूड होता है डेफिनेटली इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। तो जब वो सेहत के लिए अच्छा होता है, आपकी आपकी जो बैलेंस्ड आपकी जो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री होती है उसके लिए उसको वो इंश्योर करता है, तो डेफिनेटली यू गेट अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायरस, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शंस। सो इसको हम डायरेक्टली तो इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली डेफिनेटली हर किस्म आई एम की नॉट सेइंग, बीमारी के साथ इसका ताल्लुक। नहीं डायरेक्टली मैं ये भी नहीं कह रही कि डायरेक्टली जो है हम लोग इसको इट इज रिलेटेड टू लाइक डायरेक्टली हम इसको पेंडेमिक से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन पेंडेमिक के बाद ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजों के स्टेटस को टूटे हैं, कन्वेंशनल पैटर्न्स टूटे हैं, बहुत सारी चीजों के स्टेटस को टूटे हैं। तो जिसकी वजह से जो ऑफ कोर्स पेंडेमिक जो है वो एक बीमारी है, तो उसमें हेल्थ पे ही पहला फोकस जाता है। तो फोकस हेल्थ जो जाहिर है फूड से रिलेटेड है, तो फूड हम लोग ऑर्गेनिक की बात करें। और इस पेंडेमिक के दौरान जितने भी डिजिटल वेंचर्स और डिजिटल हमारे सामने जो एक पूरा एक इकोसिस्टम सामने आया, तो उसमें जो है वो फूड का बहुत ज्यादा डीपली कंसर्न पूरी ग्लोब का है, नॉट जस्ट पाकिस्तान, पूरी ग्लोब का है कि हम लोग फूड पे कंप्रोमाइज, क्योंकि इस डेकेड से पहले इसी डेकेड में ही फास्ट फूड का कल्चर आया है। और फास्ट फूड और लाइक होम फूड को हमने छोड़ के रेस्टोरेंट से फूड मंगवाना, मतलब हम लोग इस तरफ गए हैं। तो अभी दोबारा से फिर हम लोग वी आर रिवाइविंग आवर कल्चर अगेन, लाइक होम फूड, home culture again, like we have revived during this pandemic. In the result of awareness, consciousness, and the you know the रियलिटी को जानने के बाद इंसान जो है वो अपने रास्ते को वापस आ जाता है। जैसे कहते हैं कि जब आपको हकीकत का अंदाजा होता है तो आप अपनी वो जो आपकी बुनियादें हैं आप उसकी तरफ वापस आते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट दैट। It is all about that. अच्छा, मेरा जो इसमें जो मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो लोग इनऑर्गेनिक जो फूड क्वालिटी है उस पे जो कंप्रोमाइज कर रहे थे, व्हाट वर द वेयर वर द एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स वर डूइंग, मतलब वो क्या कर रहे थे उस टाइम? Why they had not focused on quality of food, especially organic quality of food? And this question is from Fakhr Imam. Please explain this कि उस टाइम एग्रीकल्चर की जो policies है वो ऑर्गेनिक फूड की क्वालिटी की तरफ क्यों नहीं थी, और वाई भी हमने जो है अपना सरप्लस बढ़ाने के लिए Actually, the main concern was कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जैसे अवैस ने कहा कि ग्रो होना स्टार्ट होगी और बहुत तेजी से ग्रो होना स्टार्ट होगी, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो वो तो बात ठीक है, फोकस यही रहा कि जी आप किसी को भूखा पूरा करें। तो उस वक्त ये हम लोग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो है ये 1960s में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया और ये फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड और इनका जो यूज होना फूड में शुरू हो गया। तो वो ये उसका मेन ये था कि ज्यादातर फोकस ये रिसर्च उस वक्त इस पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस कर रही थी कि आप जो है लोगों को फूड की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करें। और सेकेंडली फार्मर्स जब इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए तो उन्होंने जब ये इनपुट डालना स्टार्ट कर दिया केमिकल फर्टिलाइजर्स और ये उससे उनकी यील्ड बढ़ गई। और जब यील्ड बढ़ गई तो उनका जो है वो इकोनॉमिक्स जो है वो लाइवलीहुड जो है वो डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई। और जब वो उनको फार्मर्स को अर्निंग आना स्टार्ट हो गई तो वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते गए और बगैर कुछ सोचे समझे जो है और बगैर कुछ गाइडेंस लिए बगैर पाकिस्तान में 4 ऐसे रिसर्च इदारे हैं जिनका मुझे मालूम है जो ऑर्गेनिक जो है एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं।
स्पेशली नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में बहुत बड़ा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का इदारा है। बट अगेन जो चीज़ है वो the main problem is that research is bounded within the four walls of research stations and nobody can take that research towards the end users। वो end users के पास सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, और जब वो देखता है कि मार्केट से भी उसको जो अगर स्पॉन्सरशिप किसी चीज़ की मिल रही है तो ये बड़े बड़े ग्रुप्स की मिल रही होती है, फॉर एग्जांपल फातिमा फर्टिलाइजर, टेंग्रो यूरिया, कोई भी इवेंट करवा रहा होता है तो डेफिनेटली जब वो स्पॉन्सरशिप उसको मिल रही होती है और उसको इतना वो नहीं हो रहा होता, वो इन चीज़ों को जो है वो ज़्यादा प्रमोट करता है, बिकॉज ये मार्केट में चीज़ है। लेकिन मैं इसको आपकी पहली बात को थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगा कि जब ये लॉकडाउन और ये सिचुएशन पैदा हुई तो बहुत सारे फार्मर्स जो मेरे साथ लिंक हैं और डिजिटल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो इवन इन अ व्हाट्सएप ग्रुप, इस्लामाबाद की पॉपुलेशन एक लेडी है, उसने वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें जो है वो ऐड कर दिया बहुत सारे लोगों को जिनके साथ ये थे, उसके ताल्लुकात थे और जिनके पास इधर इस्लामाबाद में ऐसे घरों में रहते हैं, ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे वो जो है वो किचन गार्डनिंग और इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इस पेंडेमिक में जब बंदा डर रहा होता है कि मार्केट ना आ जाए, तो इस चीज़ ने थोड़ा सा शिफ्ट किया है लोगों को। एंड आई नो मैनी फार्मर्स ऐसे हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, वो जो है वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए हैं और उन्होंने जो है वो ग्रो करना जो है वो स्टार्ट कर दी है। लेकिन मास लेवल पे जो है इसको लिए अवेयरनेस चाहिए ताकि फार्मर्स को, और दूसरा कि फार्मर्स को ऑर्गेनिक से वो यील्ड, इस तरह की लैंड को बनाना पड़ेगा और इस तरह की प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी कि लैंड, आपकी जो ज़मीन है, जो सॉइल है, वो इतनी पावरफुल हो जाए कि आपको जो है वो फर्टिलाइजर्स और इसका जो है वो यूज़ ना करना पड़े। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, अभी जैसे ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ये सारे सिस्टम करने की वजह से कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो लोग हैं, जो जिम्मेदार, जो लैंडलॉर्ड हैं, वो ये कहते हैं कि अब सॉइल वैसी नहीं रह गई, लाइक ट्यूबवेल होने की वजह से और लाइक उस पे जो है वो दूसरी चीजें प्रोसेस करने की वजह से सॉइल वैसी नहीं रह गई। और अगर हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ जाते भी हैं तो उसके लिए टाइम बहुत लगता है, तो इसका प्लीज काइंडली आप जवाब दें कि इस तरफ जो है देखें, सबसे पहले तो जो है कि सॉइल को जब आप फर्टिलाइजर, फार्मर्स के पास अवेयरनेस नहीं है, वो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल डीएपी का फर्टिलाइजर जो साइंस रिसर्च स्टेशन जो रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने 3 साल डाल दिया तो चौथे साल आप ये फर्टिलाइजर यूज ना करें, क्योंकि जो आपकी सॉइल है उसका हार्ड पैन बन जाएगा। जब हार्ड पैन बन जाएगा तो वो जो जितने भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं वो 5 को अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन इस तरह की फार्मर जो है वो कंटिन्यूसली अपनी लैंड के ऊपर जो है वो फर्टिलाइजर का यूज करते 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 उन्होंने अपनी लैंड जो है, आपके क्वेश्चन का आंसर है कि वो अपनी लैंड जो है उन्होंने इतनी हार्ड पैन क्रिएट कर दिया है कि अब वो जो है उसका लैंड का वो पोटेंशियल नहीं रहा। तो इसमें रिसर्च काफी ज्यादा है, जो मैं रिसर्च जो हम फार्म पे ऊपर सॉरी फखर डियर, जो आपका ये क्वेश्चन जो आंसर कर रहे हैं कि लैंड के ऊपर अगर हम लोग जस्ट ये ऐड करते हैं हार्ड पैन की डेवलपमेंट की वजह ये नहीं होती। हार्ड पैन सो मैनी रीजंस की वजह से क्रिएट होता है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो हैवी फॉर्म मशीनरी का यूज़ होता है। ठीक है, उससे आप हमारी सॉइल हम लोग कंपैक्ट कर देते हैं और स्पेशली जब आप हमारा रूटावीटर वगैरह है तो इसमें हम लोग सॉइल टेक्सचर को हम लोग इसके अंदर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अंदर ना तो सॉइल का टेक्सचर वो है उसको डिस्टर्ब होता है, तो वो जो सॉइल के अंदर बेसिकली पिलरीज होती हैं और वो हार्ड पैन बेसिकली क्या होता है, वो सॉइल के नीचे एक हमारा सब सरफेस जो है वो वाटर जो जाता है वो कैपिलरीज की वजह से, उसको कैपिलरीज में वो जहाँ से एयर सर्कुलेशन होनी होती है वहाँ पे सॉइल के फाइन पार्टिकल जो है स्पेशली क्ले के वो उसके अंदर चले जाते हैं और फिर उसको ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये इस वजह से हार्ड पैन बनता है। ठीक है, बाकी जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं उसकी वजह से कुछ ऑर्गेनिक मैटर वगैरह जरूर बर्न हो जाता है वो, और वो भी अगर एसिडिक कोई हाईली एसिड हो तो वो ऑर्गेनिक मैटर बर्न करता है। अदरवाइज जो नॉर्मल हमारे पास फर्टिलाइजर हैं जैसे डीएपी है, केमिकल्स वगैरह जो नाइट्रोफॉस है, तो इनसे सॉइल मैटर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बर्न नहीं होता। और जो बात आप फरियाल कर रही थी कि जी सॉइल डिप्लीशन जो हो जाती है कि जी हाँ जी तो जो सॉइल पहले जैसी नहीं रही, उसका बेसिक रीजन ये नहीं है कि हाँ जी हम लोग वहाँ पे फार्मिंग करते जा रहे हैं और उसको डिप्लीट होती जा रही है। ऐसा नहीं है। हमारे जो अभी तक
क्योंकि मैं इस टाइम पे जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर है जिसके अंदर आप हाइड्रोपोनिक है, एनएफटी है, सॉइल लेस एग्रीकल्चर है वेजिटेबल्स की, वो मैं उससे लास्ट 16 ईयर से उसी के साथ एसोसिएटेड हूँ। और उसके रिलेटेड जो सीड, फर्टिलाइजर, केमिकल, इन सब से मैं मेरा लिंकअप है। तो हम लोग, हमारा जो किसान है वो सिर्फ मैक्सिमम दो या तीन चीजें ऐड करता है। वो नाइट्रोजन ऐड करता है, एनपीके, या नाइट्रोजन करेगा, फास्फोरस करेगा, या पोटाश करेगा। अब ये तीन चीजें ऐड करता है और उसके बाद अब सॉइल के अंदर आपके पास 16 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब वो 16 टाइप्स के वो डाल नहीं रहा होता है और जो जस्ट 3 डाल रहा होता है। अब अगर तो सॉइल प्रोफाइल कंप्लीट आप एनालिसिस करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी सॉइल के अंदर किस चीज की डेफिशिएंसी है। अगर उसकी सॉइल के अंदर उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है तो उसका कोई रीजन है, और वो रीजन क्या है वो आपकी लैब्स वगैरह से आप इसके टेस्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद, और अनफॉर्चुनेटली वो लैब्स भी नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है मोहसिन मलिक, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बाद में जो है वो गायब हो जाते हैं अगर मैंने उसको टाइम देना किया तो। जैसे कि अभी आपने कहा कि फार्मर, एक तो पहली रीजन ये है कि हमारे यहाँ फार्मर को बिल्कुल ही बिल्कुल ही उसको जो है वो साइड पे रखा जाता है, उसको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं दी जाती और टाइम के मुताबिक उसको ट्रेन नहीं किया जाता रिगार्डिंग टू डेकेड, रिगार्डिंग टू एरा, उसको बिल्कुल ट्रेन नहीं किया जाता। तो अभी जैसे आपने कहा कि 3 चीजें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दिया जाता है। पोटेशियम दिया जाता है जमीन को, और बाकी 60 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स और सॉइल को जरूरत होते हैं। इसको काइंडली जरा आप उसको ब्रीफली जरा डिस्क्राइब करें कि हर सॉइल को तो नहीं ऑफ कोर्स जरूरत होंगे 60% के, क्योंकि सॉइल डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट है। जो आपका हमारा देखिए हमारी अच्छा, लेट मी कंप्लीट हमारी माय जो क्वेश्चन, सॉइल, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। और एक तो सॉइल डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट है, और दूसरी ये कि क्या फार्मर को इस चीज की अवेयरनेस है कि जिस सॉइल पे वो ये 3 न्यूट्रिएंट्स डाल रहा है, क्या उस सॉइल में इन्हीं 3 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं है, या अगर है तो वो क्यों नहीं डाल रहा, और हर जमीन पे क्या सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है? प्लीज इसको डिस्टिंग्विश करें लाजमी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी नेसेसरी। इसके अंदर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, हर क्रॉप को हर चीज में चाहिए। लाइक अगर आप वेजिटेबल्स के अंदर बात करते हैं, वेजिटेबल्स को मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स की जो नीड होती है वो वेजिटेबल्स को होती है। अच्छा, वेजिटेबल्स के अंदर अब आपका जो टोमेटो है, टोमेटो अब कैल्शियम का रिच सोर्स है, तो उसको कैल्शियम एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, अब कैल्शियम जो है वो आपके पास 2 किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके अंदर एनपीके आ जाता है, और दूसरा उसके बाद आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बोरान है, जिंक है, कॉपर है, फेरस है, मैंगनीज है। तो ये अब ये बाकी जितने भी चाहिए होते हैं ये बड़ी माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और लेकिन इनका इंपॉर्टेंट रोल इनका इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि बिल्कुल माइनर क्वांटिटी में चाहिए होता है इनका। अब जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स के अंदर एक्चुअली मल्टीपिक वेजिटेबल्स आ रही होती हैं, तो उसके लिए आपका टोमेटो है, उसके अंदर आपको ये चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होगा। कुकम्बर है, कुकम्बर के अंदर आपको फास्फोरस आपको ज्यादा चाहिए होता है। फिर आपका अनियन है, तो अनियन के आपको सल्फर बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो आपको ज्यादा चाहिए होते हैं। तो हर एक के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, सेम रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑफ कोर्स, तो क्या ये और फार्मर को और पता फार्मर जो वेजिटेबल का जो फार्मर है, अभी कुछ अवेयरनेस आ रही है, स्पेशली टनल फार्मिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके फार्मर को तो कुछ अवेयरनेस है, वो चीजें कुछ अपने एंड के ऊपर कर रहा है। ट्रेस एलिमेंट्स की अवेलेबिलिटी, हाँ जी, ट्रेस एलिमेंट्स का 1 स्प्रे दे देता है, 2 स्प्रे दे देता है, लेकिन अब उसकी क्वांटिटी कितनी डालनी है ये अभी तक पता नहीं चल रहा, क्योंकि आपके पास लैब की कोई टेस्टिंग फैसिलिटी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर आपको एग्जैक्टली पता हो कि भाई मैंने अपनी जमीन का कंप्लीट सॉइल प्रोफाइल करवाना है। और फिर उसके बाद एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक मैटर। हमारी सॉइल जो है वो, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर की परसेंटेज है वो 0.5% है। अब होनी कितनी चाहिए? 5% होनी चाहिए। 5% और 0.5% के साथ आप कंपैरिजन करके अपनी फार्मिंग करते हैं तो ये इसके अंदर आपको इश्यूज आते हैं इसके अंदर। अब आपका एक एग्जांपल मेजर क्रॉप्स के अंदर, अब जिंक जो जितना भी अगर कोई काश्तकार यहाँ पे कोई फार्मर कम्युनिटी से है तो उनको अंदाजा होगा कि जो राइस है, राइस के अंदर अब ये जितना भी आपका शेखुपुरा या कॉलर रीजन था, हमारा ये राइस ग्रोइंग बेड था, वहां पे जब भी हमने राइस ग्रो करना है तो राइस के अंदर जिंक जो है वो अब जरूर ऐड करना पड़ता है, क्योंकि वो सॉइल बार बार राइस के साथ को राइस के अंदर जिंक ज्यादा चाहिए, तो वो जिंक
वहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई, वहाँ पे जैसे आप डीएपी डालते हैं तो ऐसे ही अब वहाँ पे फार्मर को सबको अवेयरनेस है कि भाई राइस के अंदर जिंक लाजमी डालना है। अब उसके बाद वीट के ऊपर भी ऐसा इशू आ रहा है, अब वीट में भी जिंक जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अभी इनफैक्ट बल्कि जिंकोल के नाम से एक वैरायटी गवर्नमेंट ने एक अभी आई है रिसेंट डेज ईयर्स के अंदर। अब वो वैरायटी है वो स्पेशलाइज्ड है कि जी उसके अंदर एक्स्ट्रा जिंक होगा, तो जिंक उसके अंदर एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये हर क्रॉप की रिक्वायरमेंट एक तो अपनी अपनी है, और हर रीजन के जो पंजाब में कुछ इसकी डिफरेंस हैं। हमारा जो केपी रीजन है, केपी रीजन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की परसेंटेज ज्यादा है, और ये जितने भी माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये आपके ऑर्गेनिक मैटर जिसको आप ग्रीन मेन्योरिंग के अंदर कर लेते हैं, फार्म यार्ड मेन्योर के अंदर कर लेते हैं, पोल्ट्री मेन्योर के अंदर कर लेते हैं, तो उसके अंदर ये नेचुरली पाए जाते हैं। तो वो हमारा फार्मर अगर वो भी ऐड करना कर देता है तो फिर भी आपकी ये चीजें कम होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी वेल इंफॉर्मेशन मोहसिन मलिक। अच्छा, हम इसी से ही नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पेंडेमिक में बहुत, जैसा कि फ़खर ने कहा, और कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ काफ़ी गए हैं लोग, विच इज़ लाइक ये एक फैक्ट है, लाइक होम फार्मिंग की तरफ स्पेशली गए हैं। बहुत सारे लोगों ने होम फार्मिंग करना शुरू किया, जिसमें वो लोग ये क्लेम करते हैं कि हम लोग फर्टिलाइजर भी डालते हैं। ये अब सेंस नहीं है उनको कि वो फर्टिलाइजर किस वैरायटी का डाल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सनलाइट और वाटर हमारे आंखों के सामने होता है, तो फिर कंपैरेटिवली टू दैट वो जो पानी यूज करते हैं और वो वहाँ पे जिस तरह से होता है, तो हम लोग बेटर इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे क्लेम दैट। तो इसी चीज को हम लेकर चलते हैं, बात करते हैं अहमद रजा खान किरमानी से, जो कि चेयरमैन है, और वो बताएंगे इस हवाले से फूड फार्मिंग जो है वो उनका प्रोजेक्ट रह चुका है। तो वो इस हवाले से बताएंगे कि फूड फार्मिंग में क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और फूड फार्मिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसको और मजीद इसमें प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे अवेयरनेस दी जा सकती है लोगों को, आम लोगों को कैसे अवेयरनेस दी जा सकती है ऑर्गेनिक कल्चर प्रोड्यूस करने के लिए। डिजिटल अरीना में क्यों ज़रूरत है हम एग्री बेस्ड कंट्री को, क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड है, ऑफ कोर्स वी हैव टू मूव इन दिस अरीना और वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मेथड है उसमें भी इतनी लाइक लूप होल्स हैं और इतने ड्रॉबैक्स हैं, जो कि जैसा कि मोहसिन मलिक ने बताया कि हमारे फार्मर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वी आर ब्लेस्ड विद मल्टी नेचर ऑफ सॉइल, और सॉइल का हमें नहीं पता, सॉइल के टेक्सचर हमने खराब कर दिया है, कौन सा फर्टिलाइजर कितने ड्यूरेशन में यूज करना होता है हमें ये अवेयरनेस नहीं है। दूसरा ये कि फर्टिलाइजर कौन सा यूज करना है, कब यूज करना है, और किस सॉइल पे किस तरह का फर्टिलाइजर यूज करना है, इस चीज की अवेयरनेस हमारे फार्मर को नहीं है। तो हमारे तो कन्वेंशनल पैटर्न्स में भी इतनी ड्रॉबैक है, इतने ड्रॉबैक लूप होल्स हैं। तो अभी जो डिजिटल अरीना है और एग्री बेस्ड कंट्री, जो कि पाकिस्तान का आपको पता है कि इकोनॉमी सिस्टम हमारा एग्री और टेक्सटाइल पे डिपेंड करता है। तो और इस पेंडेमिक के बाद हम लोग, ऑफ कोर्स पूरी दुनिया का फोकस अब लैंड पे भी है। तो एज बीइंग एन एग्री बेस्ड कंट्री, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर? यार यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, प्लीज मुझे मौका दीजिएगा। जी एक तो अभी मोहसिन साहब ने बहुत अच्छी और बड़ी हेल्दी डिस्कशन की और बहुत हेल्दी इंफॉर्मेशन दी फॉर दी जी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। हार्ड पैन से बात शुरू हुई थी, तो यहाँ पे मैं कुछ अपना ऐड करता चला जाऊँ कि जैसा कि फ़खर भाई ने कहा था कि हार्ड पैन की जो बुनियादी वजूहात में एक वजह एक्सेसिव केमिकल यूज़ होता है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़, और मोहसिन साहब ने कहा था हैवी मशीनरी। तो ये दोनों वजूहात हार्ड पैन कॉज करती हैं, बल्कि इसके अलावा ड्रॉट की वजह से भी हार्ड पैन सॉइल जो है वो क्रिएट हो जाता है सॉइल के अंदर। सो बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ वजूहात हैं हार्ड जी पैन की, और ये सब बुनियादी तौर पे ये तीन मेनली वजूहात डिस्कस की जाती हैं, जिसमें हैवी वेट आ जाता है, हैवी मशीनरी, और एक्सेसिव केमिकल यूजेज, और उसके बाद ड्रॉट। अब आपने बात की डिजिटलाइजेशन ऑफ की, सो डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे हम बात करें तो अभी उसके साथ ही आपने ये भी बात की कि फार्मर अवेयर नहीं है। सो इसका जो रूट कॉज जो इसको जो मैं एनालिसिस करता हूँ, तो इसका रूट कॉज आ जाता है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि उसने एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन को डिफ्यूज करना है और इसको जो है वो फार्मर तक पहुंचाना है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज अ लिंक विद लिंकेज बिटवीन फार्मर एंड द रिसर्चर। सो अगर आप मेरे मुझसे ओपिनियन पूछेंगे इस बारे में, तो मैं ब्लंटली ये कहूँगा कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इसका
बहुत बड़ा कसूरवार है कि जिसने फार्मर को अवेयर नहीं किया, और digitalization of agriculture एक टूल है to diffuse and disseminate information among the farming community, and the digital platform जो कि एक virtual वर्ल्ड है, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि लिमिटेड टाइम में लेस इन्वेस्टमेंट के साथ आप मैक्सिमम लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। Yes. सो हमारे साथ बुनियादी तौर पे इशू ये आ जाता है कि हमारा जो फार्मर है वो स्मॉल लैंड होल्डर है। तो स्मॉल लैंड होल्डर की वजूहात में आप जाएं तो वो ये पता चलता है कि पॉपुलेशन बढ़ती है, और जो विरासती तकसीम के नतीजे में एक स्मॉल लैंड होल्डर्स जो है वो वजूद में आ जाते हैं। तो स्मॉल लैंड होल्डर हमेशा से रिस्क टेकर नहीं होता, वो रिस्क नहीं ले सकता। तो जब आप एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ अडॉप्शन कर रहे होते हो तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। आप जो कन्वेंशनल फार्मिंग चलती आ रही, जो ट्रेडिशनल आपकी प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं, आपने अपना उससे एक तब्दीली आपने अडॉप्ट करनी है। तो अडॉप्टेबिलिटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है उस फार्मर की इकोनॉमिकल पोजीशन। सो जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इस काम में नाकाम रही है कि वो फार्मर को कन्विंस कर सके इस बात पे कि न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू डेवलपमेंट्स को हम कितनी ज़रूरी है, ना सिर्फ इनफरादी हैसियत में बल्कि इज्तिमाई हैसियत में भी। और इज्तिमाई हैसियत आता है तो वो मुल्क की सतह पे बात आ जाती है। सो अब मैं इसको कंक्लूड करूंगा यहाँ पर। आपने नूर साहब से ये सवाल पूछा था। सो जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो इसकी भरपूर कोशिश की गई है चंद डिकेड्स में। फखर भाई इसने इस पे बहुत सारा काम किया है, जिसमें रिकल्ट एक एप्लीकेशन है, आजकल उस पर काम किया जा रहा है। रिकल्ट का अगर आप में से किसी को नहीं पता तो रिकल्ट एक एप्लीकेशन है जिसमें आप जो फार्मर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होते हैं। उसके साथ साथ बाखबर किसान एक एप्लीकेशन है जिसके जो मुजब हैं, जिसको बनाने वाले हैं वो फखर इमाम है। उसके अलावा जोंग इस पे काम कर रहा है। तो मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म है, एक ज़रई बैठक के नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि जिसके अंदर फार्मर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती थी कि वो डिजिटल मीडिया के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू वो एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन चूंकि हमारा फार्मर जो मेजॉरिटी फार्मर है वो अनएजुकेटेड है, वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की तरफ नहीं जाता जल्दी। सो ये मसला आता है। तो द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी एंड द मोस्ट इफेक्टिव टूल जो मैं समझता हूँ फार्मर को कन्विंस करने का, वो